Hello everyone. Today's topic is notochord. What is notochord? Notochord is flexible rod-shaped body found in embryos of all chordates. Serve as a basis for the axial skeleton and it present in midline. It's a midline structure found in embryos. Now, primitive streak. Cells of primitive streak secrete fibroblast growth factor 8 and which is responsible for the movement of epiblastic cell, that is movement of epiblastic cell and invagination of the epiblastic cell through primitive node or Hensen's node. Then development of notochord, pre-notochordal process. First of all, this is primitive streak, primitive pit or Hensen's node. This secrete fibroblast growth factor 8 which is responsible for movement and invagination of epiblastic cell beneath epiblast, in between epiblast and hypoblast. The first cells, pre-notochordal cells, migrate through the primitive pit and form a solid structure that is termed as notochordal process. This is the process. This one. This is the notochordal process. If we take a cut section through the primitive pit and primitive streak, then we found that cells, epiblastic cell, migrate, become flask shaped and invaginate in between epiblast and hypoblast, and these cells make a cord-like structure in midline that is termed as notochordal process. Now, after formation of notochordal process, canalization of notochordal process occur. This canalization of notochordal process make notochordal canal. Then after that, degeneration of endoderm and floor of notochordal canal. Floor of notochordal and endodermal. Notochordal. Degeneration of endoderm, that is endoderm कहाँ से आया? Invaginated cell replace hypoblastic cell to form future endoderm, and floor canalization होने के बाद में एक पाइप है, उसका एक फ्लोर है, एक रूफ है, बीच में कैनाल है. तो जो फ्लोर है और जो एंडोडर्म है, दोनों का degeneration होता है in midline region to form a neuroenteric canal. Then थर्ड क्या हुआ? सबसे पहले notochordal process बना, then canalization of notochordal process, notochordal canal बनी, then degeneration of endoderm and floor of notochordal canal. Then primitive pit, ये primitive pit वाला एरिया है, पिट वाला जो एरिया था वहाँ से एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के बीच में कम्युनिकेशन फॉर्मेशन हो जाता है. इसको हम कहते हैं न्यूरोएंट्रिक कैनाल. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि स्टिल अभी तक हम ट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, मतलब फ्यूचर प्लेसेंटा अभी थर्ड वीक के इनिशियल में पूरी तरीके से
फॉर्म नहीं होती है, बन रही होती है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो यॉर्क सैक से लेते हैं। इट्स टेम्परेरी कम्युनिकेशन फॉर्म बिटवीन द एमनियोटिक कैविटी एंड यॉर्क सैक. This communication is termed as neuroenteric canal. What functions of neuroenteric canal? Temporarily connects the amniotic and the yolk sac to provide nutrition to developing embryo from yolk sac. After formation of the neuroenteric canal, when we get sufficient nutrition from developing placenta, then neuroenteric canal get closed and roof of the canal get fixed with endoderm or hypoblastic layer. रूफ ऑफ द कैनाल. अभी क्या ये एक प्रोसेस बना, इनिशियली प्रोसेस बना, देन प्रोसेस में कैनालाइजेशन हो गया. इसमें एक रूफ का पोर्शन रह गया और एक फ्लोर का पोर्शन रह गया. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमें फ्लोर को भी यॉर्क सैक फ्लोर को भी एब्जॉर्ब करना पड़ा. तो अभी हमारे पास सिर्फ रूफ का पोर्शन बचता है ना. अभी हमारे पास सिर्फ रूफ बचेगी. तो ये रूफ का जो पोर्शन है, रूफ के जो सेल्स हैं वो एम्बेडेड हो जाएंगे एंडोडर्मल सेल के साथ में और एक प्लेट बनाएंगे, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. उसे कहेंगे हम नोटोकॉर्डल प्लेट. व्हाट इज नोटोकॉर्डल प्लेट? इट इज mainly pre-notochordal cells become intercalated in hypoblast or endoderm. Hypoblast or endoderm cell get intercalated. Then for short time in midline we have only 2 layers. ना थर्ड वीक में हम 3 layers की फॉर्मेशन कर रहे हैं. बट जब नोटोकॉर्डल प्लेट की रूफ, न्यूरोएंट्रिक कैनाल की जो रूफ है, वो जब एंडोडर्म के साथ फ्यूज़ हो जाएगी मिडलाइन के अंदर, क्योंकि नोटोकॉर्ड पूरा मिडलाइन स्ट्रक्चर है, हम मिडलाइन में दिख रहे हैं और कहीं नहीं दिख रहे हैं, मिडलाइन स्ट्रक्चर है. तो मिडलाइन में जब वो उसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी, जब 2 लेयर आपस में फ्यूज़ हो जाएगी तो टोटल हमारे पास 2 लेयर बचेंगी. तो ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है. और ये जब फ्यूजन होगा तो ये इसको हम बोलेंगे नोटोकॉर्डल प्लेट. देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डल प्लेट, नोटोकॉर्डल प्लेट इंटरकैलेट हो गई, इस डायग्राम में हम दिख रहे हैं. देन इनफोल्डिंग होगी नोटोकॉर्डल प्लेट की, इनफोल्डिंग ऑफ नोटोकॉर्डल प्लेट. जैसे जैसे सेल और सेल इन्वेजिनेट करते जाएंगे प्रिमिटिव पिट के थ्रू, वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं. तो जो नोटोकॉर्डल जो प्लेट है उसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए तो वो फोल्ड होगी, क्योंकि फाइनली हमें एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स चाहिए. मिडलाइन में भी 3 लेयर्स चाहिए ना. तो फोल्डिंग होगी और हमें फाइनली डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड मिल जाएगी. दिस इज डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड. ectoderm, mesoderm, this is mesoderm and this is endoderm. In midline we have notochord. Definitive notochord position क्या है? Under the neural tube. न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही है, एपीब्लास्टिक सेल से ही डेवलप होगी. एक्ट एज अ function of notochord, act as a signaling center for inducing the axial skeleton. Extend cranially up to the precaudal plate and caudally up to the primitive pit. primitive pit तक जाएगी, cloacal membrane तक नहीं जाएगी, सिर्फ primitive pit तक extend करेगी. elongation of notochordal process कैसे,
जो प्रोसेस है, मतलब जो नोटोकॉर्ड है वो कैसे लेंथ वाइज कैसे इंक्रीज करेगी। मिड लाइन के अंदर है नोटोकॉर्ड पूरा, तो जो इनिशियली क्रेनियल पोर्शन की फॉर्मेशन होगी, क्रेनियल पार्ट इज फॉर्म फर्स्ट, क्रेनियल एंड फॉर्म, देन इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। जैसे जैसे एम्ब्रियो इलोंगेट होगा, कॉर्डल रीजन्स आर एडेड एज प्रिमिटिव स्ट्रीक अज्यूम्स अ मोर कॉर्डल पोजीशन, क्योंकि एम्ब्रियो भी इलोंगेट हो रहा है प्रिमिटिव, तो नोटोकॉर्ड भी इलोंगेट होगी उसके साथ साथ। दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक, दिस इज द न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो ऊपर न्यूरल प्लेट है, फिर उसके बाद नोटोकॉर्डल सेल्स है ना, तो न्यूरल प्लेट देन नोटोकॉर्डल प्रोसेस एंड प्रिमिटिव स्ट्रीक। फिर जब ये इलोंगेशन हुआ, एम्ब्रियो इलोंगेट हुआ, तो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक हो गया, प्री कॉर्डल प्लेट से प्रिमिटिव पिट तक, क्योंकि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है वो रिग्रेस हो जाएगी बाद में, तो उसके जो पिट वाला पोर्शन है वहाँ तक एक्सटेंड करेगा, प्री कॉर्डल प्लेट टू प्रिमिटिव पिट एक्सटेंड। देन फेट ऑफ नोटोकॉर्ड क्या, प्रिमिटिव एक्सियल स्केलेटन अराउंड विच द वर्टिबल कॉलम इज फॉर्म एंड रिमेन्स क्या रह जाएंगे, इट रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड पूछते हैं, रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसस। और एक जगह मिलता है लिगामेंट होता है फर्स्ट या सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे का, मुझे क्लियरली याद नहीं है अभी, बट वहाँ वो भी रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड होता है। ये नोटोकॉर्ड है एंड दिस इज न्यूक्लियस पल्पोसस। थैंक यू।